square. Today we will continue our chapter number 1, rational numbers. We will start associativity. Associativity क्या होती है? If we can change the bracket of three numbers without changing the result, this is called associativity. Suppose we have A star B star C is equal to A star B star C, then this property is called associativity. Means the star can be plus, minus, multiply or divide. It can be anything, okay? Firstly, we have to check associativity for whole numbers. We have to check for whole numbers. अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो हमें चेक करना है कि होल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस कैटेगरी में होते हैं ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। इसके अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 2, 3 एंड 5। इस साइड हम लेंगे 2 + 3 + 5। चलिए आप बताइए, आर दे इक्वल? फर्स्टली 5 + 3 8, so 2 + 8 and this side 2 + 3 5, 5 + 5, ओके। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। सो ब्रैकेट के अंदर क्या था, 3 + 5 जो कि 8 के इक्वल था, और यहाँ पे 2 + 3 जो कि 5 के इक्वल था। Now 2 + 8 is equal to 10 and 5 + 5 is equal to is also equal to 10. So left hand side is equal to right hand side. So we can say that whole numbers are associative under addition. जो whole number होते हैं वो associative होते हैं। All the whole numbers are associative under addition. Addition के अंदर में whole numbers क्या होते हैं, associative होते हैं। Now we have to check for subtraction. We will also take a simple example like 2, 3 and 5, okay? This is left hand side and this is RHS, right hand side. Firstly we have to solve the brackets. Here this side 3 - 5 is equal to -2, okay, and 2 - 3 this side is equal to -1. Minus minus will be plus and 2 + 2 is equal to 4, but on the other side minus minus plus, this will be -6. So we can clearly see that the both sides are not equal. So we can say that whole numbers are not associative under subtraction part, कि जो whole numbers होते हैं वो subtraction पे associative नहीं होते, क्योंकि ब्रैकेट हमने जब चेंज किया तो रिजल्ट भी हमारा डिफरेंट आया, ओके। नाउ वी हैव टू चेक अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव टू सी फॉर मल्टीप्लिकेशन। टेक एनी 3 होल नंबर्स, है ना, आप कोई भी 3 होल नंबर्स लीजिए, सेम 2, 3, 5, 2, 3 and 5, same this side 2, 3 and 5. So first we have to solve the brackets, है ना, 3 5s are 15 and this side 2 3s are 6. 2 into 15 is equal to 30 and 6 5s are also equal to 30. So हम कह सकते हैं कि जो हमारा
होल नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। इट मींस अगर आप ब्रैकेट को चेंज भी कर देते हो सो द रिजल्ट विल बी सेम। ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर डिवीजन। Again we have to take the same three numbers 2, 3 and 5. 2 divided by 3 divided by 5 on the left hand side और right hand side में लेंगे 2 divided by 3 divided by 5। अब हमें देखना है कि क्या रिजल्ट आता है both the sides। ओके, so 2 divided by this is 3 by 5, 3 by 5 and here this side 2 by 3 divided by 5. Clear? So what will be this? This will be 2 by 3 multiply 5 because see 3 तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में जा रहा है और 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। ओके, so this will be 10 by 3। अब देखें राइट हैंड साइड पे, सो 5 कहां जा रहा है, डिवाइड के अंदर। ओके, सो 2 by 15। सो हमने देखा कि डिवीजन जो होती है वो नॉट एसोसिएटिव होती है फॉर होल नंबर्स। मींस होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। होल नंबर्स के अंदर डिवीजन क्या नहीं होती, एसोसिएटिव नहीं होती, बिकॉज दिस साइड आर नॉट इक्वल। ओके, नाउ वी हैव टू समराइज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। ओके, सो क्या एडिशन एसोसिएटिव थी या नहीं हमारे पास? यस, एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। Subtraction, no. Subtraction is not associative. Then we talk about multiplication, which is associative, and last one is division, which is not associative. I hope the concept is clear to you. Okay, students. So हमने associativity किया था whole numbers के लिए। Same method हमें use करना है integers के लिए भी और rational numbers के लिए भी। Okay. The role of zero. जीरो एक ऐसा नंबर है उसको आप किसी भी चीज में प्लस कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल 2 + 0 = 2। जब आपने 2 के अंदर 0 प्लस किया या फिर अगर आप माइनस भी करते हो तभी आंसर कितना आएगा आपका? 2 इज द आंसर। तो क्या कोई चेंज आ रहा है आपके आंसर में? नहीं। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन आप 0 को प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, द रिजल्ट विल बी द सेम नंबर। ओके, फिर आता है हमारे पास द रोल ऑफ 1। आप देखोगे कि अगर आप 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? सेम रहेगा। इफ यू मल्टीप्लाई 2 with 1 द रिजल्ट विल बी 2। अगर आप किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही नंबर आपका रिपीट होगा। जैसे कि 0 के साथ क्या हो रहा था, उसको प्लस या माइनस कर सकते हो, वैसे 1 को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो किसी भी नंबर में, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 0 और 1 का रोल मैथ्स के अंदर किसी भी नंबर में आप इसको यूज कर सकते हो। अब 0 और 1 के कांसेप्ट में हमारे पास दो चीजें आती हैं। फर्स्ट है आपका नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का नेगेटिव। सेकंड वन इज रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का इनवर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ नंबर की। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 का नेगेटिव क्या होगा? 2 का नेगेटिव होगा -2। सिंपल ना। 5 का नेगेटिव क्या होगा? -5। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि -3 का नेगेटिव क्या होगा? -3 का नेगेटिव, तो आपको साइन को चेंज करना है, माइनस का प्लस कर दोगे और प्लस होता तो आप क्या कर देते? माइनस कर देते। ओके, तो आपको साइन को चेंज करना है, वो उस नंबर का नेगेटिव होगा।
फिर आता है हमारे पास रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस उस नंबर का उल्टा। जैसे 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, 5/2 का उल्टा क्या होगा आपके पास इनवर्स क्या होगा 2/5। मींस रेसिप्रोकल के अंदर आपको क्या करना है उस नंबर को उल्टा कर देना, फ्लिप कर देना है। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि -2 का इनवर्स क्या होगा, सिंपल ना, आपको उसका रेसिप्रोकल बताना है, तो इट विल बी -1/2। क्लियर है? -2 का क्या होगा -1/2। सो दिस इज रेसिप्रोकल एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन के ऊपर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमें -3/4 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर से। ओके, सो एक मेथड तो आपके पास है कि आप इसको पहले सोल्व करोगे ना बाय टेकिंग एलसीएम। आप इस एलसीएम लोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरा मेथड हमारे पास है कि आप -3/4 को इन दोनों नंबर के साथ क्या करोगे अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। पहले आपने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/6। क्लियर? आपने जो -3/4 था उसने दोनों नंबर के साथ अलग अलग क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार इस नंबर के साथ और दूसरी बार इस नंबर के साथ। सो देखो 3 से 3 क्या होगा आपका कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है -1/2 है ना। 2 जो आपका नीचे आ रहा है, दिस साइड आपका क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट दिस विल बी 5/8, वो भी प्लस का 5/8। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस विल बी प्लस एंड हियर दिस इज ओनली 1 माइनस ना, सो -1/2। इसको आगे कैसे सोल्व करना है बाय टेकिंग एलसीएम। 2 और 8 का एलसीएम होगा हमारे पास 8। एलसीएम निकालना आप सबको आता ही है। नाउ 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, -4, 8 1 जा 8, 1 5 जा 5। सो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है +1। देखो प्लस का नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर छोटा है। सो रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास प्लस का साइन आएगा, और 5 में से 4 गया तो कितना बचता है 1। सो आंसर विल बी प्लस का 1/8। दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो।